Sir, my name is Shivakumar Singh. I am a PhD pursuing from IFT Gujarat. Here in this place and I'm here work as an assistant professor. And I have CMS? yes. Okay. And I have 12 year experience in computer science department. Okay, that's fine. Good afternoon, sir. My name is Amit Sinha. I am faculty of LNS Business School, and I am CS faculty, and currently I am pursuing PhD from GU University. Good. Very good afternoon, sir. Once again, this is Isha Gupta, Assistant Professor at Chagrin College of Arts, Science and Commerce. I'm teaching in MCOM and BCom classes, having 12 years plus experience. Very good. Thank you, sir. अरे कुछ भी बोलो यार, स्टूडेंट हो तभी बोलो, एक आदत डालो कि बोलने की। हाँ नहीं बोलोगे नहीं, डोंट डू दैट। आप उन्हीं को दीजिए, कुछ भी बोलिए, हाँ हो जाइए, बोलिए कुछ भी, अपने बारे में बोलिए, कुछ भी बोलिए, नॉट नेसेसरी। My name is Shimon and I am pursuing MBA. गुड। तो उसको क्या बोला है कि परसुइंग एमबीए तो गुड यार, आप इसमें उसको दे रहे हो भाई। हाँ Hello sir, my name is Ashu. I am doing pursuing for MBA for this college. वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड यार, यू आर परसुइंग एमबीए फ्रॉम दिस कॉलेज। और आपको क्या हम भी बताएंगे। वेरी गुड। नाम क्या बताया आपने? सायना? A very good afternoon, sir. My name is Ruchi Rathi. I am teaching here as a visiting faculty since last 7 years. Before this college, I was with Java Institute of Management. I taught there for around 3 years. And before that, I did the corporate job in Dainik Jagran as a finance executive, and then worked as an assistant chartered accountant in TMS Associates London. I am taking management subjects in this college. गुड। Good afternoon, sir. I'm Alka Mishra. I'm associate professor from management department, and I have overall 8.5 years of experience from same college. गुड। इन दिस कॉलेज? Yeah. गुड। Very good afternoon, sir. I am Mrs. Tanushri Banerjee. I hail from Chhattisgarh. After marriage, got shifted to Kanpur. So I have been teaching for last 9 years. Earlier, I was in St. Vincent Pallotti College, Raipur, and I was appointed there from the university. And now I am pursuing my further career over here in CMS for last 2 years. I am a management faculty teaching MBA and BBA students with core concepts of marketing and management. Good. Thank you so much. नहीं बच्चों को दो ना, उन्हें बोलने की आदत पड़नी चाहिए। Good afternoon, sir. My name is Harshita Pandey. I am currently pursuing MBA from this college. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Hania Gupta. I'm currently pursuing MBA from this college. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Anuj Sharma, and I am pursuing MBA from this college. Thank you. Good afternoon sir, my name is Sandesh Rathod. I am currently pursuing MBA from this college. Good afternoon, sir. I am Shruti Agrawal and I am the management faculty in this college, and I am teaching here since last 4.5 years. And in my degree, I am currently pursuing PhD in law from Rama University, and I have done LLB, LLM, and MBA. Good. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Prakhar Tiwari. I have done my MBA from Indian School of Business Studies, Pune, and I am assistant professor in this institute, and basically I have 8 years of experience. Thank you. Good afternoon, sir. Myself Ashi Pandey, and I am pursuing my PhD right now from CSJM University. And currently I am working here as an assistant professor and seeing after BBA MBA classes. Very good.
and I am just triple net qualified and gold medalist from CSGM as well. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. My name is Karl Pandey, and I am currently pursuing BCA degree from College of Management and Studies. And I have 7 months experience as a solutions architect in Amazon Web Services. Oh, great. And I have 2 diplomas, one in Cloud Foundation and one is Cloud Computing. Very good, very good. Good afternoon, sir. I am Mohit Kumar Srivastava, work as an assistant professor in CMS Kanpur. I have 11-year experience. Thank you so much. अच्छा, एक बात आपके सबके दिमाग में आ रही होगी कि फर्स्ट सेशन में रोल कॉल क्यों नहीं किया गया? आपको लग रहा है कि नहीं लगा कि क्यों फर्स्ट सेशन में हमने ये काम क्यों नहीं किया? उस समय में मोदी था, जो मोदी सिर्फ अपनी बात कहते हैं, सुनते नहीं है दूसरे की, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बारे में बताना था और देश के बारे में बताना था, और उस समय मुझे आपकी नहीं सुनी थी। अब ये सेशन जो है मुझे सिर्फ आपकी सुननी है। ये ना 2-वे ट्रैफिक चलेगा इस सेशन में। 2-वे ट्रैफिक के लिए जरूरी है हमें पता चले कि आप हमारी नॉलेज क्या बढ़ा सकते हैं, हम आपकी नॉलेज क्या बढ़ा सकते हैं। हम मैक्सिमम व्हाट आई फील कि हमारी नॉलेज आज बढ़ेगी, ये निश्चित है, क्योंकि जो हमने इतना आपसे इंट्रोडक्शन लिया उसमें मुझे ये लग रहा है कि मुझसे ज्यादा कहीं आप लोगों को सब पता है। चलिए, अब फर्स्ट सेशन के बारे में एक बार ना हम लोग फिर से रिकॉल करें, क्या हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था। कैन यू जस्ट आप जरा खड़े होकर बताइए फर्स्ट सेशन में अपने ने ब्रीफ क्या क्या चीजें अपने डिस्कस करी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री 1.0, देन स्टार्टिंग engines, then second of all industry 2.0, starting electricity through of Thomas Alva Edison, and industry 3.0 starting computers basically, and last of industry 4.0 industry starting AI, cloud computing and IoT and blockchain, and next is 3D printing at all. Good. Any other thing you can add? Cyber security also. Very good. You have to look cyber security also. Pardon? Cyber security you have to discuss already. जी। सर, आप कुछ ऐड करेंगे? बस यही है सर, साइबर सिक्योरिटी, IoT एंड रिवोल्यूशन पे सर बात करते हैं कि रिवोल्यूशन कैसे आया? नहीं, आप सबके आइडियाज दो। जब मैडम आप बैठे हैं जान कर के, हाँ बताइए। हाजी राठी जी, आप बताएं कुछ नया जो उन्होंने डिस्कस किया और समय में याद ना आ रहा हो। सर, आपने तो बेसिकली फोकस किया था नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जैसे जैसे हम लोग को जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती गई, वैसे वैसे हमारे इन्वेंशंस होते चले। करेक्ट करेक्ट। वहीं से हमारे सारे रेवोल्यूशंस हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3, 4। अब हम लोग आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5 में आने वाले हैं। तो कैसे 4 तक पहुंचे एंड कैसे हम लोग 5 में आएंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे। जी जी। हाजी MBA परसुई, बोलिए बोलिए। आप 3 लोग जो बैठे हो साथ में, बताते थे आपको कुछ पिछला कुछ याद आ रहा है? ऐसे कुछ भी बोल रहे यार, उसमें तो बोलने में क्या है? बोलने में ना एक आदत बनती है कि मुझे कुछ तो बोलना है। मेरी ये टाइम्स लोग कहते हैं मैं क्या बोलूं, मैंने कहा आज जो सुबह अखबार में पढ़ गया वही बता। तो एक ना MBA करने वाले बच्चे को ना एक वो आदत डालनी पड़ेगी कुछ तो बोलने की। मैडम, आपने अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए, फिर अपने भी डिस्कस की फर्स्ट सेशन में क्या डिस्कस किया। नहीं, हम लोग अभी सिर्फ रोल कॉल पे चल रहे थे। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर उसके बाद तो सबसे इम्पोर्टेंट था नाम तो बताइए नहीं। अमृत, अंबर, अच्छा वेरी गुड। अनामिका जैन अंबर, मैंने वो कवित्री का नाम सुना है। अनामिका जैन अंबर सुना आपने? अंबर, उसका नाम अंबर लिख लिया आखिर में। चलिए कहते नहीं, बैठिए। थैंक यू। फर्स्ट सेशन में जो डिस्कशन किया कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों ने सुबह डिस्कस किया था?
चलिए, एनी अदर पर्सन जो कुछ वैल्यू एडिशन कर सके इसमें, जो चीजें अपने सुबह मॉर्निंग सेशन में जो डिस्कस किया था। So basically keep updating yourself, एक जगह स्टैटिक मत हो, डायनामिक होना बहुत जरूरी है। जितना हम इस चेंज को एम्ब्रेस करेंगे उतने आगे बढ़ते जाएंगे। प्रॉस भी है, कॉन्स भी है इसके। श्रुति जी, आप कुछ एडिशन करेंगे क्या? सर ये देखा कि इंडस्ट्री 4.0 कैसे 5.0 की तरफ बढ़ रही है और इसमें क्या क्या अपडेशंस हुए और क्या चीजें हैं, यही सब डिस्कस हुआ। हाँ जी, फार्मिंग में सर आपने एग्जांपल ड्रोन का बताया था कि किस तरीके से हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करके उसमें कैसे प्लांटिंग कर सकते हैं, डिजीज को कैसे पता कर सकते हैं, उसमें किस तरीके का पिगमेंट के थ्रू पता कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया था। वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, रिवोल्यूशन के बारे में बात की थी, 5 पॉइंट के बारे में बात की थी, इन सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ। आशी जी, So how things are evolving and changing nowadays, and women empowerment भी आपने उस पे emphasis किया था कि how to settle down the changes with the sustainability and the changing environment to get a better exactly. Any addition, any value addition by anyone else? सर टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है उसके बारे में किस तरीके से उसे एक्सेप्ट करना है और कैसे इम्प्रूव करना है। जी, चलिए, वंडरफुल। इनफैक्ट मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है। और अब ना हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली अब जो मेन टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जिसपे मुझे आपसे सीखना है। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है, हम कहते हैं ना, एथिकल वैल्यूज एंड अनएथिकल। डोंट यू रियलाइज कि इस समय जो है एथिकल वैल्यूज पे हम कम काम करके अनएथिकल ज्यादा कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हैं, वन बाय वन विल गो एंड हम देखेंगे क्या एथिकल वैल्यूज के हिसाब से करते तो क्या होता और अनएथिकल करने से हमें क्या डिसएडवांटेज हो रहा है। अब कोई भी चीज अगर पकड़े तो शुरुआत से अगर देखें, हमें बता दीजिएगा श्रुति जी, श्रुति जी चली गई क्या? कितना टाइम तक हम लोग कर सकते हैं सब? सर 3:30 क्या? 3:30, so we have 1.5 1.5 चलिए, ठीक है। चलिए, अभी सब ज्यादातर मैंने देखा तो कॉमर्स के लोग हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री 4.0। वी डू डिफाइन व्हाट इज इंडस्ट्री। आप बताइए, इंडस्ट्री क्या है? सर इंडस्ट्री बेसिकली कि किसी भी चीज को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर। आप सीएस के हो ना? यस। समझ गए। जो कॉमर्स के कौन लोग हैं वो बताए, कॉमर्स के हाँ बोले, राठी जी आप बताइए। देखिए, ये जो सीएस वाले लोग हैं उनका तो बिल्कुल अलग टेक्निकल वो चलेगा। हम जो कॉमर्स वाले लोग हैं वो इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? Sir, industry is a place where we convert the raw materials into a finished product. It's basically the conversion. We can say the factories or the place where we do the conversion of the products. Any other value addition to this? इकोनॉमिक्स के हमारे बैठे हैं जागरण के जी, आप बताएं इंडस्ट्री को कैसे आप डिफाइन कर रहे हो? जब एक बार इंडस्ट्री समझ आ गई ना, तो इंडस्ट्री 1, 2, 3, 4 वट एवर इट इज, आपने कभी सुना मैन, मशीन, मटेरियल, फाइनेंस का लोग सुना? ये सब मिलकर क्या करते हैं? इंडस्ट्री को बना देते हैं, isn't it? यही होता है ना इंडस्ट्री। अब इन लोगों की जो रोल है वो कैसे हम डिटरमिन करते हैं, वो सब चीजें जब एक सब मिलके ना, ये आइडियाज कैसे इंडस्ट्री में हम क्या नया करें, कैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए,
कैसे हमारी कास्ट रिड्यूस हो, यू नो, आप इंडस्ट्री को कैसे एज ए CFO जैसे हम लोग इंडस्ट्री को अपनी, हमारा एक फोकस रहता था कि यार हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हो रही है, हाउ टू रिड्यूस द कास्ट। अब हमें वॉलमार्ट का ऑर्डर मिला, देखिए हम लोग टेक्सटाइल में थे, वॉलमार्ट वगैरह आपने नाम सुना होगा, आइकिया, वॉलमार्ट वगैरह का, ये जो ऑडिट कराते थे आइकिया वगैरह के 236 ये ऑडिट के उनके नॉर्म्स हुआ करते थे कि लेबर अनरेस्ट तो नहीं है, वुमेन के लिए टॉयलेट है कि नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीजें इनकी ऑडिट कराते थे, और जिसमें नहीं हुआ उसमें माइनस मार्किंग हो जाती थी, और अगर माइनस मार्किंग बाद आपने आप सर्टेन स्टैंडर्ड नहीं पाया तो आपको ऑर्डर नहीं देते थे। तो हम लोगों ने वो ऑडिट कराया, सोशल ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, सारी चीजें ऑडिट्स के बाद ये हमको देखना पड़ता था कि हम कैसे अचीव करें कि हमें ये ऑर्डर मिल जाए। अब ऑर्डर मिलने तो हर आदमी बाहर निकल गया, बट साथ कोई डरा हुआ था, दे वर पीपिंग इन फ्रॉम द विंडोज कि ऐसा मारपीट कर रहे हो रामू को। दिस मिस्टर चेयरमैन, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव given me the opportunity. Now Mr. Chairman, just tell me what you desire. If you desire 2 million, I'll arrange it 2 million. If you desire 2 trillion, I'll arrange it 2 trillion. This is MBA. You know, जितने MBA के बच्चे हैं, this marketing skill must be, you know, known to everyone. MBA वाला आदमी कभी ये नहीं कहता, मुझे पता नहीं, कुछ बच्चों ने कहा था, हम खड़े होकर जवाब, अरे यार MBA का आदमी, कुछ भी पूछो हर चीज का रेडीमेड रिप्लाई। अरे यार हम कानपुर के जहाँ मसाला ही बेच लेते हैं 5 तरह। अब आप ऐसे बोलो कि हम नहीं जवाब देंगे, अरे आप उस शहर के हो जहाँ हर चीज जो भी कह दो, आप बोलो आसमान से तारे ला दीजिए, सब ले आएंगे। अरे भाई कोई चीज ऐसी जो हम नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने यही तो कहा था ना कि आप आपदा में अवसर ढूंढिए, यही था ना जवाब। अगर आपको याद हो वो रिव्यू जब वो कोरोना काल आया था, याद है मैडम, एक उनके रिक्वेस्ट पे, सोचिए हिंदुस्तान है, उनकी एक रिक्वेस्ट पे हर घर से घंटा घड़ियाल बज रहे थे, याद है। ऐसा वही है प्रेरणा का स्रोत। आप कभी आपदा से डरिए नहीं। उन्होंने सिखाया है हमको, कोई विपत्ति भी आए तो मुस्कुरा के सामना करिए। यार वो तो उस देश के हम हैं, हमें हर चीज के लिए, हमें कई बार मुझे बोलते लोग यार, अरे यार अब इंटरनेट का जमाना आ गया, IoT है, आर्टिफिशियल, अरे हमने कहा तो क्या हो गया, अरे इसके अलावा भी कुछ आएगा, अरे जो भी कुछ आएगा हम होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे ना, हम क्यों डरे। अगर फर्स्ट सेशन आपको मेरे याद हो, मेरा मैंने एक ही बात कही थी, केवल मन से 4 वर्ड निकालिए, FEAR। द मोमेंट इट इज रिमूव यू आर फियरलेस। कुछ भी कोई पूछे, कुछ भी फैकल्टी पूछे, कुछ भी दुनिया में कोई आदमी पूछे, आई एम रेडी टू गिव द रिप्लाई। लेकिन फिर वही बात आती है, रिप्लाई मस्ट बी रेलिवेंट वन। कोई पूछ रहा है खेत काम खलियान के बारे में तो बताने लगे, है ना, रेलिवेंट रिप्लाई हो, बट वी मस्ट बी रेडी। ये क्या ना, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है कि आप डर गए हैं या नहीं डर गए। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैडम आप तो इंटरव्यू वगैरह भी लेते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम फेशियल एक्सप्रेशन से समझ आती है बच्चा डर रहा है कि नहीं डर रहा है। तो वो चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बना के रखिए, सफलता आपके चरणों में होगी। चलिए अब उस पर आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ और नहीं है। इन सबकी जो प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन लर्निंग अबाउट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो मिसयूज है, हम उस मिसयूज से कैसे बचे। अब ट्रेनिंग उसकी देना हमारे बच्चों को ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है, इतनी हाई सैलरी पे डिमांड है इन सब बच्चों की। बिकॉज हम तो खुद कर रहे हैं पॉइंट, मैं NRC का भी चेयरमैन, NRC कराते हैं नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, मैं स्टॉक सिंह का उसका चेयरमैन हूं NRC का। कैन यू बिलीव, जो CEO है हमारे यहाँ लतिका कुंडू, आप नाम डालेंगे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक से, लतिका कुंडू CEO है, शी इज गेटिंग 1.2 करोड़ पर एनम। एंड जो CTO है 1.5 करोड़, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सीशो जो है, सीशो वो 1.4 करोड़। तो ये क्या है ना, आज की तारीख में कहते हैं ना, जिस चीज से ज्यादा खतरा है ना, उस चीज से बचाव के लिए हम चाहे जितने पैसे देने पड़े, वी आर रेडी टू पे। वही है हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में हो रहा है। ह्यूज डिमांड इस समय है कंप्यूटर साइंस की। लेकिन वही बात है, ये हमेशा ऐसे सर्किल नहीं रहेगा, ये सर्किल ऐसे ही चलता है, कभी आप टॉप पे होंगे तो कभी नीचे होंगे। तो बी प्रिपेयर्ड। आज आपके अच्छे दिन है तो बुरे दिन, ऐसे नहीं बुरे दिन आएंगे, बट यू मस्ट बी रेडी कि हम जैसे ही कुछ बुरे दिन आने का होगा, हम छलांग लगा के अगला टारगेट। ये मेरा सबको कहना एक ही है, द मोमेंट यू रियलाइज कि हम टॉप पे हैं
और सर्किल के टॉप पे आने के बाद मुझे पता है सर्किल घूमेगा और ये समय है, समय ऐसे ही घूमता पूरा गोल चक्कर के साथ ऐसे घूमता है। तो गोल चक्कर में जैसे ही आपको लग रहा है कि नीचे की तरफ खसक रहा है तो आप क्या करिए, द मोमेंट यू रियलाइज तो आप अगली छलांग लगा के अगला टारगेट फिक्स कर लीजिए, तो आप कभी भी नीचे नहीं आएंगे। ये मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है कि द मोमेंट यू रियलाइज कि हमें नीचे आने का समय आ गया है तो आप छलांग लगा के अगला टारगेट फिक्स कर लीजिए। चलिए आर्टिफिशियल, अब बिग डाटा अगर लिखा, मैंने मॉर्निंग में बात कही थी, आप सोचो ना इन सबका रॉ मटेरियल क्या है, कभी आप सोच के दे दीजिए। चलिए आप बताइए, इन सब जितनी भी चीजें आप देख रहे हो इसका रॉ मटेरियल क्या है? आप उसी लाइन की वजह मैंने आपसे पूछा। सर टोटली बेस्ड ऑन बिग डेटा। एग्जैक्टली, देखिए करेक्ट रिप्लाई। अब हमने अपने कॉमर्स वाले बच्चों को पूछे, जल्दी से ना जवाब देते। दिस इज द करेक्ट। देखिए सब कुछ जो है इनका रॉ मटेरियल केवल और केवल बिग डाटा है। उसकी एनालिसिस करना, फलाना करना, ढिमाका करना, वो तो अपनी जगह है, लेकिन सब कुछ कहते ना, जो बीज आप खेत में डालोगे फसल वही उगेगी। ये है ना अपना प्रिंसिपल, तो यही है। वो बीज डालना, बीज क्या है? केवल और केवल डाटा। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट, एमसीए का ले लो, एमसीए की पूरी साइट में सारे डाटा सारी कंपनीज के फीड किए गए, तभी तो आज आप करते ना। जब मोमेंट आप खोलते हो किसी कंपनी की फाइल, आप हमारी कंपनी खोलिए, आपके पास इंफ्राकॉम आपको तुरंत मिल जाएगा, इसमें डायरेक्टर राकेश श्रीवास्तव, कैपिटल है इतना। अभी डाटा आया कहां से? बिकॉज डाटा तो आ नहीं गया। ये टीसीएस ने क्या किया, सारी कंपनी के डाटा कलेक्ट किए, फीड किए, हमने अपने डाटा एनालिस्ट लगाए, उन्होंने सब डाटा फीड किए, एक जगह स्टोर हो गए। फिर एनालिसिस हुई, एनालिसिस होने के बाद इसमें चार्जेस का अलग कर दो, ये अलग कर दो, अलग अलग फाइलें बनाएंगे। ये बहुत बड़ा काम था, एंड दैट इज व्हाई दे आर चार्जिंग सो ह्यूज अमाउंट। मैंने अभी बताया आपको 7 करोड़ रुपए पर मंथ देते हैं टीसीएस को। चलिए, तो बिग डाटा एनालिटिक्स समझ आ रही है आपको? ये पहली बात समझ आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब लोग बता रहे कुछ आ गया समझ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स? कोई जवाब ही नहीं आ रहा कैसे? चलिए आप ही बता दो, सबको एक बार बोलो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। इट्स अ बैकबोन ऑफ, ये भी बताइए, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बोलिए अरे भाई, आप ही इसके मेन है, तो हम लोग आपसे सीख रहे हैं। Sir, first of all, AI. AI is a totally based on machine learning. If you want to store a data. Yes, cloud बोलो जैसे वेयर हाउस। आप देखिए, इन्होंने अपनी भाषा में बताया, मैं आपको नॉर्मल अपनी भाषा में बताऊं। आपने वेयर हाउस सुना है ना? Yes. हम लोग जब माल बना रहे थे, बहुत सारा कपड़ा बन गया, 10,000 मीटर, कहाँ ले जाएंगे? वेयर हाउस है। ये उनका वेयर हाउस है। बता दो भैया क्या है, बताओ। क्लाउड, बता दो क्लाउड का। Sir, and second is a cloud computing. Yes. Cloud computing totally based on remote sensing. You know remote sensing, what is a remote sensing? जैसे few days ago मैंने वर्क किया था IIRS देहरादून में, जिसमें टोटली वर्क कराया गया था कि मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आपको क्या करना है। सपोज एक क्राइटेरिया दे दिया, वो माइक ले लो ना यार, चक्कर में समझ आ रहा है। माइक कहाँ गया? बोला ये दे दो। देखो, ये टेक्निकल भाषा बताएंगे, हम आपको अपनी कारकुन वाली भाषा में हर चीज बता देंगे। मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपको क्या करना है कि सपोज मुझे एरिया दे दिया गया यूपी में अगर कहीं पे भी फॉरेस्ट बर्न होता है तो उसका अलर्ट सिस्टम जाना चाहिए किसके पास? फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट स्टेशन जो होता है। तो उसके लिए बेसिकली क्या हुआ, मैंने टोटली कनेक्ट किया था सेंसर से। जो भी हमारे सेंसर होते हैं, अलग अलग सेंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अगर किसी इंडस्ट्री में जाओगे वर्क करने, तो सेंसर की कनेक्टिविटी मैंने प्रोवाइड की लाइव प्रोजेक्ट से। लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे गूगल अर्थ इंजन होता है, आप सर्च करोगे गूगल पे, तो गूगल सर्च इंजन क्या करता है, पूरा मैप प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एक क्राइटेरिया सेट करोगे, अपने अकॉर्डिंग कोडिंग करोगे, और उस कोडिंग के बिहाफ पे वो क्या करेगा, गूगल में अगर कहीं पे भी बर्न होता है, वो अलर्ट सिस्टम फॉरवर्ड करेगा आपके फायर स्टेशन पे। अब ये अलर्ट सिस्टम फॉरवर्ड किसके बिहाफ पे कर रहा है? ये फॉरवर्ड कर रहा है रिमोट सेंसिंग के बिहाफ पे। वो क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेस कर रहा है। एक्सेस करने के बाद आपका डेटा फॉरवर्ड कर रहा है स्टेशन के पास, देन और ये टोटली बेस्ड हो रहा है किससे? क्लाउड से। क्लाउड के बिहाफ पे क्या कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है, और यहाँ पे यूज हो रहा है किसका? आईओटी का। आईओटी का जैसे कल मैम ने बताया था, आईओटी क्या होता है, छोटी छोटी डिवाइसेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी आप दीपावली में क्या किए थे, जो ये लाइटें यूज होती है, लाइटों में ये लाइट ब्लिंक कैसे हो रही है? ये ब्लिंक होता है टोटली बेस्ड होता है, ऑर्डिनो बोर्ड सुना होगा,
ऑर्डिनो बोर्ड में हम क्या करते हैं, एक ऑर्डिनो बोर्ड लिया, उसमें प्रोग्राम सेट किया। अब उस प्रोग्राम जैसा आप उसमें प्रोग्राम सेट करोगे वैसा ही हमारा ऑर्डिनो बोर्ड क्या करेगा, वर्क करेगा। सपोज आपने प्रोग्राम सेट कर दिया कि हाँ 1 सेकेंड में लाइट ब्लिंक होना चाहिए, 1 सेकेंड में ऑन, तो ये सिस्टम क्या होता है, वर्क करता है किसके बिहाफ पे, IoT के बिहाफ पे। ट्रैकिंग सो जाते हैं आज के टाइम पे, जो भी डिवाइसेस हो रही टोटली बेस्ड किस पे हैं, IoT। थैंक यू सर। चलिए आपने समझ लिया टेक्निकल भाषा में, चलिए हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं। एक वर्ड समझ आ गया, इन्होंने बड़ा फोर्सफुली कहा सेंसर्स। सेंसर्स तो सबको समझ आते ही। यहाँ पे पता नहीं स्कूल में है कि नहीं है, जैसे ही कोई एंट्री करता है तो फिजिकल अटेंडेंस आजकल शुरू हो गई है। मेरे दोस्त मेरे घर के बगल में तो आसी जानती, मेरे घर के बगल में रहते हैं देविंदर सिंह बोले सांसद, मेरे साथ मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। तो मुझे बोले यार राकेश भाई क्या बताएं, हमको तो लगता है हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। हमने क्या हुआ, बोले यार संसद जाओ तो वो मतलब अटेंडेंस लगती है, हाँ अंगूठे से लगानी पड़ती है। हमने कहा यार ये तो बात, बोले और दूसरा तकलीफ ये होती जब उनके PS का फोन आ जाता है, PM साहब याद कर रहे हैं तो और होने लगती कि अब सब चीज पूछी जाएगी। तो पहले क्या था, तब ये नहीं था, तब ये सेंसर्स वाला सिस्टम नहीं था। तो भैया जब मन वाला चले गए संसद में, गए नहीं गए। अब आज क्या है, द मोमेंट यू एंटर तो आपको पहले ही अटेंडेंस लगानी है। और फिजिकल मतलब क्या कहते हैं उसको, बायोमेट्रिक से आपको, अब वो भी तो सेंसर से ही है। जैसे ही आपने उसको टच किया आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई। अब रिकॉर्ड होने के बाद वो रजिस्टर अपने आप ऑनलाइन उनके पास चला गया। अब उन्होंने कंप्यूटर लेकर बोले आ गए, अब उनके PS बोले भी याद कर लेना। अब बोले आ रहा तो बोले क्या कर रहे हैं, जैसे हम इतनी बड़ी फाइल बनाए, अब पूरे डेरापुर की फलानेपुर की सब अपना जितनी है सब लेके जा रहे हैं, पता नहीं रात क्या कौन सा पूछ दे आपने क्या किया वहां पे। तो आपको बताएं ये जो सेंसर्स वाली बात कही, ये बहुत इसके अच्छे रिजल्ट हैं और कुछ इसके दुष्परिणाम हैं। अब दुष्परिणाम में अगर आ जाए तो एक ये समझ आ रहा है कि हर चीज का मुझे आइडिया लग जाता है कि इस समय कहां पे कौन है, क्या कर रहा है। अब आप ऐसे देखो, ये गूगल मैप की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी। व्हाट इज दिस? गूगल मैप के एडवांटेज सिर्फ यही है कि हम कहां पे जाना है, मुझे एडवांटेज है उसका। मिस यूज क्या है, मुझे आप कहां पे हो ये भी पता है ना ये। अब उसका मिस यूज देखिए, लादेन को ड्रोन से उड़ा दिया अमेरिका ने, बैठे बैठे वहीं से उसने पता कर लिया खिड़की पे इस समय। मैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों में अमेरिका को पता है 5th सेंटर पे बैठे इसी जगह अटैक करेगा। ये क्या है, मिस यूज ही तो है। अगर यूज कर रहे हैं तो अच्छी टेक्नोलॉजी है, मिस यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। मेरा सिर्फ कहना यही है, टेक्नोलॉजी को अब एक नया चीज शुरू हुई है, पता नहीं आप लोगों को आइडिया कि नहीं। नाइजीरिया एक जगह है, वहां पे जितना अच्छा करना चाहते हैं साइबर सिस्टम को, उतना ही नाइजीरिया को सिखाते हैं साइबर को क्रैक कैसे करें हमारी सिक्योरिटी को। नाइजीरिया में बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं एंड दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट। साइबर फिजिकल सिस्टम जो हमारा है उसको तोड़ने की वो स्टाइल बनाते हैं एंड दे आर पेइंग अच्छी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं ट्रेन करने के लिए, प्रॉपर क्लासेस हो रही है। तो सोचो हम जितना कहते ना, इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था एथिकल और अनएथिकल के बीच में बैलेंसिंग की बड़ी जरूरी है। ऐसा ना हमारे बच्चे अनएथिकल काम करने लगे तो जो हम अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन वही मुझे याद आता है PM साहब की बात कि अनएथिकल के डर से, इस डर से कि हमारा साइबर सिक्योरिटी क्रैक हो जाएगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते हम दौड़ में पीछे चले जाए। अब मुझे दौड़ना ही है तेजी से, इसीलिए सूरत में जो लगाई है चिप वाली, इसीलिए अब सब कुछ मेड इन इंडिया सब कुछ होता है। तो आपने जो बात कही वो सेंसर्स की बात है, मशीन लर्निंग की बात है, आपस में मशीन कम्युनिकेट एक दूसरे को कर रही है। वो जो बात थोड़ी देर पहले कही कहां पे क्या हो रहा है उसके पहले हमें पता। आप ऐसे देखो ट्रैक कैसे करते हैं, आपका आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया, आप ट्रैक कर रहे, पिज्जा चला वहां से कि नहीं चला, कहां तक पहुंचा और ठंडा हो गया तो वापस ले जाइए। आप सोचिए ये ट्रैकिंग सिस्टम कैसे, कितना ज्यादा स्मार्टनेस आ गई मशीन लर्निंग की, वो वही बैठे बैठे वो ट्रैक कर लेता। आप जब ऑर्डर करते हो आपको नहीं पता चल जाता है कि हमारी डिलीवरी चल पड़ी है, अब यहां तक आ गई है। मैं तो अपना से जानता हूँ, जब कभी मेरी बेटी एयरपोर्ट वगैरह जा रही होती और हम ये से वो उससे भेजते थे ओला वगैरह, तो हम ट्रैक करते थे मेरी बेटी कहाँ तक पहुंची,
तो सोचो कितना हम डेवलप कर रही है हम लोग कि हर चीज का मुझे आइडिया है। और इसी का दुष्परिणाम देखिए, दूसरी तरफ अगर चल के देखें तो आपको नहीं लगता हमारी बहू बेटी सुरक्षित भी नहीं है? जो क्रिमिनल्स है उन्हें पता है कि मिस्टर श्रीवास्तव घर पे है कि नहीं है। सोचिए कितना हम लोग कहते रहते हैं कि भाई आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो मत डालो फेसबुक पे खुशी खुशी कि मैं गोवा में हूं, मैं जर्मनी में हूं। अरे भाई सबको पता ही चल जाएगा आप जर्मनी में परिवार से, तो घर अकेला खाली पड़ा है। आप सोचो तो जितना हम सुरक्षा का सोच रहे हैं उससे ज्यादा नहीं जो उसका मिसयूज करने वाले हैं वो कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही है, हमें केवल बैलेंसिंग करनी है। फिर वही बात इस डर से कि डिसएडवांटेज के डर से हम उसको अडॉप्ट ना करें, टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो 3 चीजें हम लोगों ने अभी कवर करी। पहला था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो कमाल की चीज है जो दुनिया में कभी सोची भी नहीं थी। दुष्परिणाम देखो क्या हुआ, आपके सामने वाला हुआ चाइना का जो क्या था 2020 में जो बहुत बड़ा हुआ ना कोरोना काल जिसे कहते हैं। भाई एक चाइना ने वहां बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। ये तो कुछ ना कुछ यही सबका रिजल्ट है ना। हमें कुछ पॉजिटिव सोच के वो तो कहिए ना, जैसे जैसे आप कुछ हमारे लिए गलत सोचोगे ना भगवान वैसे वैसे नई चीजें इजाद कर, वैसे वैक्सीन बन गई। हर चीज का रिजल्ट, उसका आप कुछ भी गलत करोगे उसका समाधान तुरंत ईश्वर का समाधान भी है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को पकड़ के रखना है। उसके लिए ये डर से कि ये ऐसा हो जाएगा। अब साइबर फिजिकल सिस्टम से तो हम खुद ही जूझ रहे हैं। हम अपना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने बताया ना कभी कभी तकलीफ होती है कि हमारी सीईओ जो मैनेजिंग डायरेक्टर का सीईओ है उसको कम सैलरी दे रहे हैं, सीटीओ और सीईओ को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। लेकिन तकलीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सुरक्षा रहे स्टॉक से की। हजारों हजार इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। और आप रिजल्ट देखिए क्या, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सबका रिजल्ट कितना बढ़िया हुआ, कितना बड़ा से बड़ा ऑर्डर आ जाए। आज हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट तो हमारा ऑर्डर पूरा कर लेते हैं। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में सब चीज कवर है। रोबोट का देखिए नई चीज हुई। अब आपको रोबोट ने तो सब रिप्लेस करते जा रहे हैं। जो सर्विस करते थे वेटर्स, अब रोबोट सर्विस कर रहे। जापान वगैरह में सब रोबोट चलने लगे। अब वो देखो नई चीज जो आई अभी, यहाँ इंडिया में डर की वजह से नहीं कर रहे हैं। फॉरेन में दुबई वगैरह में तो विदाउट ड्राइवर कार चल रही है, जो मेट्रो में विदाउट ड्राइवर चल रही है। अब इंडिया में अभी देखो एक्सपेरिमेंट होगा। अब बुलेट ट्रेन और क्या है, सेंसर बेस्ड सब चीज है। बुलेट ट्रेन एक सपना है मोदी जी का, लेकिन वो इसी डर से कि ये जो अपोजिट पार्टी है ना, अपोजिशन, सब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ आदमी मरा जा रहा है खाने को, वहां बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा हुआ। मुझे जॉन कैनेडी का याद है। जॉन कैनेडी ने कहा था कि मैं स्पेस पे भेजूंगा आदमी, नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पे भेजूंगा। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया और उसने देखो नील आर्मस्ट्रांग को भेज दिया, सुरक्षित बोला। लोगों ने कहा यार उससे ज्यादा जरूरी है कि व्हील्स लगा दो ब्रीफ केस को, जो ब्रीफ केस सर पे लगा के चलना पड़ता है, व्हील्स लग जाएंगे तो खींच के चलेंगे। और देखो व्हील्स लगने के साथ करोड़ों जनता आराम से 25-50 किलो का सामान ब्रीफ केस में लेके व्हील्स पे चल रही। तो देखिए आविष्कार आवश्यकता की जरूरी है। जो चीज की आवश्यकता आपको होती जाएगी, आविष्कार वैसे वैसे होते जाएंगे। और इससे कभी भी इनोवेशन का आइडिया कभी नहीं छोड़ोगे यार हम नहीं कर सकते हैं। हम हर चीज कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे माइंड अपने आप सोल्यूशन देता जाता है। ये माइंड जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ सुपर कंप्यूटर है। इससे बड़ा कोई कंप्यूटर आज तक दुनिया में बना है। कभी कभी लोग कई बार कहते हैं यार कंप्यूटर में तो मिनटों में वो जवाब देता है, मिनटों में कैलकुलेशन कर देता है। मैं कहता हूँ यार ब्रेन से बड़ा कोई सुपर ब्रेन नहीं है। आपका ब्रेन जो कैलकुलेट करके रखता है ना, वो कंप्यूटर भी फेल हो सकता है बट आपका ब्रेन नहीं फेल हो सकता है। क्योंकि ब्रेन का ही उपज है वो जो मशीन लर्निंग है। आपका ही डाटा फीड किया हुआ है, आपकी एनालिसिस है, आपका ही एनालिटिकल पावर वहां पे काम आ रहा है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जो आज अपने स्टूडेंट को यही सिखाना है कि जो आप लोग कि कैसे उन्हें स्मार्ट लर्निंग हर चीज करनी है और कैसे उसका मिसयूज न करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है एथिकल यूज करें हर चीज, राष्ट्र हित में करें, देश हित में करें और एथिकल तरीके से करें। केस स्टडीज बहुत सारी है, सीमेंस का है, टेस्ला का, कार का है। ये सारे इश्यूज हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। टेस्ला का तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हम लोगों ने उसी की कॉपी करी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब आया, ये शुरुआत तो टेस्ला नहीं करी थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। तो हम लोग हर एक का देखिए
आदमी देख के आगे बढ़ता है, कोई पैदा होते ही इंटेलिजेंट नहीं होता है। रोबोट की बात होगी, ऑटोमेशन, रोबोट, सब चीज रोबोट ही कर रहा है आज की तारीख में। अच्छा, सबसे बड़ा क्या है, जो चूंकि हमने तो अपने आप खुद ही देखा है, आपको पहले ही पता है, जैसे इन्होंने कहा कि ये चीज पहले ही सेंसर बता देता है। जैसे पहले अगर आपको हमारे कुत्ते भोंकने लगते थे कि आज ये होने जा रहा है, जानवर से हम महसूस कर लेते थे अब ये आपदा आने वाली है, अब उसकी जरूरत नहीं, सेंसर से पता चल जाता है। जैसे हमारे जो लूम्स वगैरह थे तो पता चल रहा है यहाँ पे फॉल्ट हो रही है, मेंटेनेंस पहले से ही पता चलता है, हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर के साथ कोई मशीन में गड़बड़ी हो रही है, अब इसको रोक के काम करा लीजिए। तो ये जो चीजें हुई है, पहले क्या हमें पूरा प्लांट बंद करना पड़ता था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। आपको पर्टिकुलर पता है कि यार इस मशीन में इस डिफेक्ट आने वाला है, उसको पहले से उसने बता दिया सेंसर से, कंप्यूटर। तो ये जो चीजें हुई है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस संभव हुआ है। रियल टाइम डाटा एनालिसिस की बात हो ही गई। अच्छा, सप्लाई चेन सबसे इंपॉर्टेंट था, इंपैक्ट ऑन सप्लाई चेन। आप तो खैर इसके मास्टर है, आपको नहीं लगा कि जो सप्लाई चेन में जो धूम मचाई पूरे हिंदुस्तान में, आप देखो सप्लाई चेन में कौन लोग आते हैं, आप ही चलिए आप भी बता दीजिए। सप्लाई चेन में जिन्होंने हिंदुस्तान में काफी पब्लिक इशू वगैरह भी लेके आए ये लोग। सर, सप्लाई चेन रिलेटेड टू ब्लॉक चेन हाँ, बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी। हाँ, जो क्रिप्टो करेंसी पे वर्क हो रहा है इस टाइम पे, मतलब इंडस्ट्री 4.0 को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल है ना, DHL का ले लो। जैसे DHL जो कोरियर सर्विस है, DHL वाले, अब ये DHL वाले पूरा कवर, पूरे वर्ल्ड में कवर किए रहते हैं। इन्हें पता है कि मेरा, अच्छा उन्हें ये भी पता है कि ये पेरिसेबल आइटम्स हैं, ये नॉन पेरिसेबल आइटम है, किसको कैसे उसकी मतलब करें। आप चलो, आप तो उसके एक्सपर्ट हो, हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, बट मुझे ये पता है कि ये इंडस्ट्री जोमेटो है, स्विगी है, DHL है, इन्होंने सप्लाई चेन को अपने कैसे मैनेज किया है। इन्हें हर चीज को ट्रैक किए रहते हैं कि यार इनका ये ग्लास का आइटम जा रहा है, इसको कैसे सुरक्षा जाए। तो ये हमारे पास क्या नहीं था, जब तक वो हर चीज को ट्रैक, एयर का देखिए सिस्टम पूरा, उन्हें पता है कि लिख देते ना कि एयर क्या लगा देते हैं ब्रीफ केस पे कि बड़ा ये ग्लास का आइटम है, इसको ऐसे सेफ्टी से, ये सब चीज बड़ा। और हुआ सब ये इसी के माध्यम से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों की वजह से जो मैंने जो महसूस किया। पहले आप बताइए लॉजिस्टिक्स पे वॉलमार्ट का एग्जांपल आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि वॉलमार्ट पूरे वर्ल्ड में किसी के एवरीडे लो प्राइसेस दे चार्ज फ्रॉम देयर कस्टमर्स। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड चार्जिंग लो प्राइसेस? उसके पीछे उनका कैसे पूरा वैल्यू चेन ऑपरेट करता है, फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स टू द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। वो पूरी की पूरी साइकिल उनकी RFID के थ्रू वर्क करती है, जिसकी वजह से उनका पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत ही वेल इक्विप्ड है, इसीलिए उनकी सप्लाई चेन की कॉस्ट बहुत कम आती है। तो बेसिकली उसमें रोल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स का है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें बहुत एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ आप बताइए। नहीं देखिए, जो आप कह रहे हो, मैं इस पे आपको थोड़ा सा ऐड करूँ। ये जो अमेजन का नाम सुना ना आपने? यस सर। गूगल और अमेजन इम्पोर्टेंट है। अमेजन मतलब टॉप मोस्ट लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं आ रही। वो हर पल अपना वॉल्यूम बढ़ाता। देखिए, वॉल्यूम जब आपका बढ़ता जाता है तो आपकी एक दिन आती है जब ब्रेक इवन आ जाता है, फिर आप प्रॉफिट जनरेट कर देते हैं, और हर फील्ड में है। अमेजन जो है, फर्स्ट टाइम ये ग्रोसरी में आए थे अमेजॉन से, पहले तो बुक सेलर थे, देन दे हैव टेकन द इनिशिएटिव कि उनको बुक सेलिंग से लेके कुछ हट के करना चाहिए। तो ग्रोसरी में अमेजॉन वाज द फर्स्ट वन, देन फ्लिपकार्ट एंड ये आपके बाकी सारे आते हैं। नहीं वो ठीक है, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात समझ पा रहा हूँ कि जितना भी ये पूरा सिस्टम है, इसको वॉल्यूम बेस्ड जाना है। क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, जैसे मैंने आपको पेटीएम का ही नाम लिया, तो इन लोगों को मैंने देखा कि कभी भी जो पब्लिक इशू इनका आया 700 रुपये का आया, 1000 क्रॉस कर गया, फिर नीचे आ गया, बट इन्होंने वो नहीं करते कि हमें कोई किसी प्रकार का वो है। आपको हर पल तैयार रहते कि नेक्स्ट इसमें क्या होता है। देखिए, रोक भी RBI ने रोक भी लगा दी इनके पेटीएम बैंक पे, फिर उन्होंने उससे एसोसिएशन कर लिया। तो आज की तारीख में जो
जो सबसे बड़ा हम देख रहे हैं फायदे हो रहे हैं इन सब चीजों के, वो यही है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, आप सेक्टर वाइज पढ़ लो तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत कुछ इसने दिया है, इंटरनेट ने, AI ने, ये डाटा एनालिस्ट ने, जितनी भी चीजें हैं, इनसे जो भी हमारे बच्चे निकल के जा रहे हैं ना, ये दे आर दी एसेट इन दी सोसाइटी। तो जरूरत इसी बात की है कि आप अपने बच्चों को इतना फुल्ली इक्विप्ड कर दें कि बस उतना ही करें कि वैल्यू एडिशन करें, कोई मिस यूज ना होने दें अपनी नॉलेज को। मिस यूज होते ही तकलीफ है, अदरवाइज तो बेनिफिट्स तो हजारों हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में देख लो, मुझे आई स्टिल रिमेंबर बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा था कि जब हम लोग कैश जमा करने के लिए टोकन देता था कि कैश निकालने के लिए टोकन लेके बैठते थे। आज अब देखिए दुनिया के किसी कोने में भी आप ATM कार्ड लिए हुए, बल्कि हमारे अपने बैंक यानी किसी बैंक के उस ATM से निकाल सकते हैं। एक अद्भुत ही तो चमत्कार है, सोच नहीं सकता था आदमी कभी। बैंक के लोन का यही है, आपको सारे डाटा ऑनलाइन भेजने, पहले इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्टों को सबमिट करते थे, अब जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन सब करें। तो आपको जो ये सब चीजों के इतने चमत्कार फायदे हैं। एग्रीकल्चर की हमने सुबह बात करी थी, ट्रांसपोर्टेशन का आप देख ही रहे हो, सब वंदे भारत वगैरह लाइव एग्जाम्पल है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गडकरी जी ने तो पूरा हिला के रख दिया। तब टनल के अंदर से समुद्र में, तो बॉम्बे में देखिए टनल समुद्र के नीचे से जा रही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत सब, और वो ये सब इसी तरह है। ये जितना भी है इंडस्ट्री 4.0 का ही कमाल है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका केवल ये जो अपोजिशन है, जो भी है, ये विरोध इसलिए नहीं कर रहे होते, सबको पता है ये देश हित में सब, लेकिन हम अपोजिशन में बैठे तो अपोजिशन करते ही करना, वो एक मजबूरी है। अदरवाइज इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो सकता है। डिफेंस का हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का फेसलेस हो गया। अब तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने नहीं, अपील भी ऑनलाइन सब डिसाइड हो रही है, कुछ भी टैक्स का आपका रिफंड भी सब ऑनलाइन अपने पास ऐसे ही हो रहा। तो आप सोचो और क्या चाहिए। मैं समझ रहा हूँ इससे बढ़िया इंडस्ट्री 4.0 का कुछ और एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि आपको सब चीज ऑनलाइन हो रही है, आपका ऑनलाइन रिटर्न फाइल हो रहा है ऑनलाइन। अब इसका मिसयूज देखिए क्या है। अब GST करिए, GST हम लोग जब जमा करते हैं इसके बड़ी तोड़ निकाली। पहले अगर आपको याद हो कैश डील बहुत होती थी, फर्जी बिलिंग बहुत। मैं तो बताऊँ अकाउंट्स का आदमी रहा हूँ, तो अकाउंट्स में पहले तो ट्रायल बैलेंस हम लोग हाथ से बनाते थे, फिर ये टैली आ गई, जो कॉमर्स के लोगों ने पता होगा, एक टैली होता था। टैली में अब लाला ने कहा कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, जो प्रॉफिट वो कह रहा है टैली में नीचे वो डाल दिया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम फिट है कि इसमें इतना % लेबर होगा, इतना % रॉ मटेरियल होगा, इतना। और जैसे ही आपने प्रॉफिट डाला उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया और टर्नओवर ऊपर निकाल दिया। अब आपने क्या करना रह गया, जब ये नहीं था, जब ये GST और ऑनलाइन नहीं था, तब उनका क्या था, लाला ने बोला था। अब हमारे अकाउंट्स के लोग क्या करते थे, फर्जी बिलिंग 10 कंपनियां क्रिएट किए बैठे, इस कंपनी से उसमें सेल, उस कंपनी से उसमें परचेज। अब उन्होंने पूरा टर्नओवर वो बना के पूरा, और CA भी घर का ही था, CA ने वही किया, टर्नओवर बैलेंस शीट भी साइन कर दिया, डब्बा भी लगा, बैंक से लोन भी हो गया। रिजल्ट आपके सामने है, सारे बैंक्स के लोन NPA हो गए और देश कहां से कहां। उसी को रोकने के लिए जितना भी मोदी जी ने किया है, आधार से लिंक किया, पैन कार्ड से लिंक किया, इनका जो भी लिंकिंग हो रही है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब 4.0 का ही है, इंडस्ट्री 4.0 का ही। जितना भी इन्वेंशन है सब उसी से रिलेटेड है। अब इसका मेन जो अपना अगर देखें तो बेनिफिट्स क्या हुए हमारी, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा, हमारी कास्ट हर चीज की रिड्यूस हुई, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बड़ी रिड्यूस हुई, क्वालिटी कंट्रोल हुआ, क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अगर भाई हमारी क्वालिटी कभी मिसमैच कर रही है, कभी प्रिंटिंग ठीक नहीं आ रही है, कभी लो क्वालिटी का मटेरियल बन रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी हुई, एनर्जी पावर सेविंग करने लगे। भैया मशीन को उतनी देर ऑफ नहीं करते, उतना ज्यादा वो नहीं हो रहा है ना। तो अब आप सोचो हम 4.0 को एडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे, व्हाट आर द बैरियर्स। आप सोच के जरा सा कुछ लोग बताएंगे कॉमर्स के तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप तो क्या बता ही लोगे। व्हाट आर द बैरियर्स के ये 4.0 को एडॉप्ट करने में हिचकिचाते क्यों है। Yes. We are not well versed with the Exactly. technical aspect of it. Exactly. और कॉमर्स के जो लोग हैं भैया,
राखी जी आप कॉमर्स साइड हो, Yes, sir. तो आप बताओ ना, आपको क्या लगा? सर सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है लैक ऑफ यूसेज। जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि आप टाइपिंग जब करते थे तो आपको उसके ड्रीम्स आते थे। यार अभी को टाइपिस्ट क्यों बनाया उसको? देखिए इनको मेरी वो वाली बात याद है कि तुम टाइपिस्ट थे। अरे भैया आप डायरेक्टर है, वो भी तो याद रखो। याद है तो एक पार्ट था, तो उसमें जो मन में एक डर बैठ गया था कि अगर आपने किया तो वो चीज उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे।